resurrect that. Let's ask our friend Mr. Bharat Soni if the Congress is back. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार. नमस्कार सर. प्रदीप जी नमस्कार. Namaskar. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम. Soni साहब is an old congressman. Yes. तो सोनी साहब से ही पूछ लेते हैं कि जिस प्रकार एक ज़माने में 60s में 70s में थोड़ा बहुत 80s में भी जिस प्रकार हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल डेडिकेशन के साथ बिना संकोच के बिना कुछ सोचे समझे कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता था, क्या वैसी कांग्रेस अब वापस आ रही है या उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए और मेहनत की जरूरत पड़ेगी? भरत सोनी साहब. सर वैसी कांग्रेस फिर से आ रही है ऐसा हमें लग रहा है. मैं एक संगठन का आदमी हूं. मैं 1967-66 के अंदर जब एसजी बर्वे जी और ताराबाई सप्रे जी उनके बाई इलेक्शन में खड़े थे, तब मैं वो जो बच्चे पीछे दौड़ते हैं ना वोट फॉर कांग्रेस बोलने के लिए, उसमें मैं भी दौड़ा करता था. क्या बात है सर. वंडरफुल. रियली वंडरफुल जी. So from there I have come to this level. जी. So मैं उस जमाने से हूँ और मैं बहुत सारे कन्वेंशंस अटेंड कर चुका हूँ. और जो पहले की कांग्रेस थी उसमें कैसे था कि बहुत सारा डेलिब्रेशंस होता था और हम लोग उसमें से सीख के आए हैं. लीडरशिप क्वालिटीज, आपको कैसे रेजोल्यूशन लाना है, रेजोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है. तो ये सारी चीजें हम लोग से थोड़ी गलती हुई है 85 के बाद, जब राजीव जी ने पूरा कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट लाए और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी सब लेके आए राजीव जी, तब हम लोग से थोड़ा ये हम लोग से छूटा है. लेकिन अभी हम लोग फिर से, जब से राजस्थान में जो कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन के बाद हम लोगों ने ये फिर से मीटिंग्स करना शुरू कर दिया है. फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस लेवल पे, प्रदेश तालुका लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, यहाँ पर भी सजेशंस और उसकी मीटिंगें होने लगी है. तो उसके तहत अभी बहुत सारे यंगस्टर्स और जो बहुत सीनियर लोग हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं. तो Wonderful. हमें लगता है ऐसे कि वो फिर से वैसा संगठन, हमारे कांग्रेस का संगठन वैसे जरूर आएगा. Soni साहब, where the Indian National Congress is concerned, Indian National Congress, whenever you say that G7 ho, G20 ho, Australian visit of the Prime Minister, Congress का कहना है it's a moment of self-glorification for the Prime Minister of the country. Narendra Modi ji is doing self-glorification. India is already a superpower. But when Rahul Gandhi ट्रक चला के दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है and truckers के साथ बात करते हैं, truckers से मिलजुल के उनके समस्या, you said that is national cause. What Rahul Gandhi is doing is national cause, and what Mr. Modi is doing is an act of self-glorification. How do you justify that, sir? Pradeep ji, Rahul ji is at the moment, mixing with the commoners. See, Rahul ji has been criticized and trolled and whatnot to the extent not beyond somebody's capacity. But he is a man who has courageously fought everything. So he is a person of commoners. He is a person who goes and mixes with the crowd. Pradeep ji, if you have seen, Indra ji used to get mixed with the crowd, and she used to go in and mingle with the crowd. Same thing Rajiv ji also did it. So now Rahul ji is looking at that, getting into the truck, meeting the BD workers, getting and listening to them. Because all these 9 years, there is nobody who is listening to the common man. There is nobody who is listening to the poor people. And that is what, when I also walked into the Bharat Jodo Yatra, we all saw to it that people are coming forward and talking to Rahul ji. They are talking and sharing their grievances. They're sharing their, their thought process and their miseries. So that is the difference between Rahul ji. Whereas our PM Modi ji has gone abroad and he is meeting the Indian diaspora. He is meeting the affluent class. So that is at the international level. So he as a prime minister needs to do that. But self-glorification is something which we should avoid it. Even our earlier prime minister used to go, like Sardar Manmohan Singh ji used to go. He never used to go. He silently used to go, and whatever he wanted to put forth his views, he used to very forthrightly
and very vehemently he used to put it, but in a very, very soft tone. But it meant business to the outside world, and it meant business to the international committee. That is what Sardar Manmohan Singh ji used to be. So there is a difference, and the people of our country are very smart. They are watching from a distance, and they have already decided what they have to do. So let us hope for the best. सोनी साहब, you are replicating, आप कर्नाटक का मॉडल को सब जगह रेप्लिकेट कर, बिकॉज आज ही आप लोग ने अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश में यू आर गोइंग टू गिव सिलेंडर 500 रुपया, 100 यूनिट फ्री, द नेक्स्ट 200 यूनिट्स को 50% डिस्काउंट में दोगे, फिर किसान का कर्ज आप माफ करोगे, आप वुमेन्स को ये जो है पैसे दे देंगे, पेंशन दे देंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करेंगे, पेंशन फिर से लाएंगे, यस ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आएंगे. सो राजस्थान से शुरू हो गया था, कर्नाटक, राजस्थान हो गया, कर्नाटक यू वन, नाउ यू वांट टू रेप्लिकेट द स्कीम, सेम स्कीम्स, द सक्सेस मॉडल इन मध्य प्रदेश. तो यू थिंक यू आर गोइंग टू विन देयर, आप जीत जाओगे ये सब मॉडल्स लेके? प्रदीप जी देखिए, मध्य प्रदेश का इलेक्शन आप पिछली बार का देखे तो वी हैड ऑलरेडी वन, एंड हमारी मिनिस्ट्री थी वहां पर, और किस प्रकार से धोखे से जो किया गया, ऑपरेशन लोटस इज व्हाट, आप इतने जोशो खरेश में ऑपरेशन लोटस बोलते हो. ऑपरेशन लोटस इज व्हाट? ऑपरेशन लोटस इज बाइंग एमएलएस. See, can you think of? See, we used to look at BJP, party with a difference. So this is what a party with a difference. You are defeating, you are buying the MLAs, and pulling down the legally, democratically elected governments. There should be something principle. We have seen Vajpayee ji's BJP, we have seen Advani ji's BJP, but what is this? At the moment we are always in a election mode, one election to the another election. एक इलेक्शन खत्म हुआ नहीं कि दूसरे इलेक्शन की तैयारी. सर आप इलेक्शन में से बाहर आइए और लोगों को, आम नागरिक को कितना तकलीफ हो रहा है वो देखिए. हम लोग 500 रुपया सिलेंडर कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि लोगों को परेशानी कितनी हो रही है. हमने गैस सब्सिडी तो हमारे से ले ली धोखे से. अब गैस सब्सिडी लेने के बाद भी अगर आप 1100 रुपये का सिलेंडर अगर लोगों को देने वाले हो, तो उज्ज्वला योजना के अंदर जो सिलेंडर्स दिए थे उसके ऊपर लकड़ी लगा के लोग अभी चूल्हा बना के खाना बना रहे हैं. सर यहाँ पर ये बताएं भरत सोनी साहब, सर हाल ही में देखा हम लोगों ने, फुटेज भी चल रही है, आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी ट्रक चला रहे हैं. ही कैन इवन ड्राइव अ ट्रक. आई एम वेरी इंप्रेस्ड यार, मुझसे तो गाड़ी भी नहीं चलती है. मतलब ही इज एक्चुअली एबल टू ड्राइव अ ट्रक, फैंटास्टिक. और उसके बाद अंबाला में बैठ करके वो ढाबे में बैठ करके सारे ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठे, वो खाना वाना खाया उन्होंने और उनकी बातें सुनी. अब ये सब जो उनकी अदाएँ हैं वो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि पिछली बार भी जब कर्नाटक में इलेक्शन थे, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले, तब भी आपको याद होगा राहुल गांधी जी बड़े आराम से कि एक उड़ीपी ढाबे के अंदर जाकर के बैठ गए थे और सब लोग वहां पर आ गए और उन्होंने, मुझे अभी तक याद है, ही नेवर रिफ्यूज टू स्पीक टू एनीबडी. पीपल वांटेड टू टेक सेल्फीज विद हिम, पीपल वांटेड टू सिट विद हिम. उनका भाई आ जाओ, बैठ जाओ, मेरे साथ खाना खाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑफ कोर्स द बीजेपी कॉल्ड इट अ स्टंट and so on, and he is doing that because it's very clear he's a people's man. What I want to know from you is, and भारत जोड़ो यात्रा जिसके बारे में अभी आपने बात करी, आप देखिए राहुल गांधी का जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो जबरदस्त है. मतलब उसमें आप कोई दो राय नहीं है कि दैट पीपल लव हिम. मेरा आपसे ये पूछना है कि कांग्रेस इतनी देर बाद जागी क्यों है कि ये तो ऐसी चीज है कि इसको तो हराना नामुमकिन है. अगर राहुल गांधी जी इसी तरह लोगों से मिलते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, तो मतलब कोई इनको कैसे हराएगा? बताएं आप, इतनी देर के बाद आप लोग जागे क्यों? उसके पहले उनको अच्छी तरह एडवाइस नहीं किया था? क्या था मतलब, जरा बताएं सर. सर राहुल जी जिनका एडवाइस लेते हैं और जो उनके जो आसपास के लोग हैं, जो थिंक टैंक है, वो उनको रेगुलरली ब्रीफ करते रहते हैं. लेकिन सर इसके पहले क्या होता था कि ट्रोल आर्मी इतनी हावी हो गई थी ना सर. हमारे जो सोशल मीडिया टीम है, जयराम रमेश जी, सुप्रिया सिन्हा जी, पवन खेड़ा जी,
ये लोग they also started giving back. See, in past we were not giving back. We were into the old concept. इनको बोलना है, बोलने दीजिए, ये जो बोलेंगे लोग समझेंगे. तो आजकल जमाना बदला हुआ है. आजकल जमाना कैसे है कि आपको एक सुना तो आपको उसको दो वापस देना है. वो जमाना आजकल आ गया. यानी ये मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ. ये मैं पब्लिसिटी की बात कर रहा हूँ. ये मैं मारामारी की नहीं बात करता. हम अभी भी अहिंसा में और गांधीयन पोजीशन में ही मानते हैं, पद्धति में ही मानते हैं. लेकिन सर तो वो देखा गया और उसके बाद क्या है, अभी राहुल जी को कोई ट्रोल करता है या झूठा कोई वीडियो डालता है तो देखिए तुरंत उसको जवाब मिल जाता है, उससे माफी मंगवाते हैं हम लोग. ये पहले नहीं होता था. तो इसलिए क्या है, और राहुल जी को भी अभी एक पूरे भारत जोड़ो यात्रा में चलने के बाद सर हम लोग सभी लोग खुद ऐसा परेशान थे कि राहुल जी ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो सुबह 6 बजे शार्प आ जाते थे वहां पर. और उसके पहले वाली रात को अगर वो 10 बजे भी गए हो, 11 बजे भी गए हो, मींस प्रेस रिपोर्टर्स और इनको सबको मिलते थे रात को वो, तो उसके बाद भी दूसरे दिन ये नहीं अरे कल रात को राहुल जी थोड़े लेट आए थे तो आज जो भारत जोड़ो यात्रा 6 बजे के बजाय 7:30 बजे शुरू हुई, नहीं. सो उनको ये देख के एक डिसिप्लिन उन्होंने देखा और डिसिप्लिन के साथ साथ उन्होंने मेहनत की. और उस मेहनत के दौरान उनको जो फीडबैक मिला लोगों से, जो भारत की जनता से और एनरूट जो भारत जोड़ो यात्रा में जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक का ये सारा परिणाम है. इस फीडबैक का ये सारा अभी जो आप देख रहे हैं वो है. तो इसलिए अभी he also gives lot of inputs to us कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे है. So that is the result what you are seeing it now. Right, which is fantastic. And by the way, just for the information of everybody, we are talking about Mr. Rahul Gandhi, his truck driving exploits and his Bharat Jodo Yatra. We were not talking about Mr. Siddharamaiah. We were talking about Mr. Rahul Gandhi. और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान he captured the imagination not just of the country but also of the entire world. Even the world press was there. Everybody was praising the Bharat Jodo Yatra. अब ये अभी उन्होंने ये कहा है कि ट्रक चलाया उन्होंने, अब आगे जाकर के और क्या चलाएंगे सर, ये भी जरा बता दीजिए. मतलब इसके अलावा he seems to love driving something or the other. सोनी साहब सुनिए, स्मृति ईरानी जी हैज क्रिटिसाइज्ड राहुल गांधी. बोले कौन से पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर रहे हैं आप, अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते तो मैं अमेठी में सेलेक्ट ही नहीं हो जाए, इलेक्ट होना डिफिकल्ट फॉर मी टू बी इलेक्टेड इन अमेठी. He says, Rahul Gandhi has done no work in Amethi at all. 80% of Amethi till she came had no electricity. There was no public hospitals. There was no colleges. There was no primary health services. Fire brigade nahi tha. That is what Smriti Irani says. बोले कि the flight of Rahul Gandhi from Amethi and her infusion, election and victory in Amethi shows that Rahul Gandhi as a person who works is total wrong feedback among the people the congressmen are giving. He does no work. How are you going to justify it, Soni Saab? Because there is some merit in what Smriti Irani says. Sir, we respect her comments. Smriti Irani ji, whatever she wants to say, let her keep her saying. But we are not seeing her on the scene. She should have been with the wrestlers at the where the wrestlers are fighting and where wrestlers are demonstrating there. She should have been there. So we are not talking anything or giving any. तो वहाँ पर हो क्या रहा है? अच्छा सर, आपने वो बात छेड़ी है तो उसके मैं आपसे सामने जानना चाह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ आपके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो हर जगह में जाके बात कर रहे हैं कि भाई भारत की बेटियां जो हैं इस वक्त आज की तारीख में जंतर मंतर पर बैठी हैं और वो मतलब इंसाफ की गुहार लगा करके बैठी हैं, उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा है. तो कांग्रेस इस विषय में क्या कर रही है सर? कुछ कर रहे हैं आप क्या उसके बारे में? सर हम लोग कांग्रेस उनके साथ बिल्कुल सहानुभूति से खड़े हैं उनके साथ. सर सहानुभूति से क्या होगा? हम लोग अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, इसलिए कांग्रेस इज नॉट कमिंग आउट ओपनली एंड सपोर्टिंग और गोइंग एंड सिटिंग विद देम. So they are fighting their battle, but then we sympathize with them. Our empathies, our sympathies, everything is there with them. And that is वो भाई साहब जो हैं वो बड़े, क्या नाम है उनका प्रदीप जी, ब्रिजभूषण, क्या नाम है? ब्रिजभूषण जी. हाँ, वो ब्रिजभूषण जी जो हैं वो बड़े रेसलिंग फेडरेशन के जो बादशाह हैं. तो मतलब
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए ब्रिजभूषण जी कांग्रेस में होते तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके नाक में दम कर दिया होता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आप क्या कर बिल्कुल रहे सर। हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उन्होंने नाक में दम कर दिया होता। इसीलिए आपने स्मृति ईरानी जी का जो मेरे को रेफरेंस दे के जो बात की है ना, कि इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी को, आप अमेठी का संभालिए, आप अमेठी को देखिए, अमेठी का लोग ही, अमेठी के जो लोग हैं वो ही समझेंगे और उनको निकाल बाहर करेंगे। तो अभी अगली बार राहुल जी तो वहां, तो अगली बार क्या राहुल गांधी जी वापस अमेठी से खड़े होने वाले हैं? सर ये तो अभी नहीं, हम लोग, ये तो अभी हम लोग बोल नहीं सकते। ही इज ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड। So he's not a member of parliament anymore. See, See, he has been disqualified. Sir, because he has been unseated, he has been disqualified. That's right. So we are fighting the case legally. If that happens, he will contest there only. If that does not happen, and if you send him to jail, he will go to jail. Sir, but the swiftness in which the action has been taken is, commendable and amazing. So such a fast track, thing has never happened in the history of India. It's wonderful for the courts. I think that's really wonderful. Yeah, it gives a very good Yes, message yes. to Yes, all the yes. litigants everywhere. जिसका भी कोई केस चल रहा है, If you're a congressman, the Okay. justice is immediately. इंस्टेंट आपको Sir, एकदम so people are फटाफट मिल watching, जाएंगे। sir. Rajiv ji, people of India are watching this. Yes. You cannot discriminate. See, there is a popular English saying that you can fool all men at some time, not all men at all times. So we have seen the defeat of Indira Gandhi in 1977. जी And we have seen the same Indira ji coming back to power in 1980. जी जी Yes, दुरुस्त sir. बात। So let us सर hope वैसे for the early- भी भारत में 10 सालों का साइकिल होता ही है, ऐसी क्या बात है। नरसिम्हा राव जी के जाने के बाद आप 10 साल के लिए बाहर थे, फिर उसके बाद आप 10 साल के लिए पावर में थे, अभी 10 साल के लिए बीजेपी है। तो क्या 10 साल जैसे ही खत्म हो जाएंगे 2024 में आप वापस आने वाले हैं क्या, मतलब लगता सर है? हमारी पूरी कोशिश तो रहेगी। और अभी जो अपोजिशन यूनिटी जो आप देख रहे हैं जी। पार्लियामेंट के बाबत में जो बॉयकॉट चल रहा है और वो ये सब देख के जो चल रहा है, उसे लगता है कि वी ऑल अपोजिशन पार्टीज विल यूनाइट एंड अपोजिशन पार्टी विल फाइट टुगेदर। लेकिन सर So, यहाँ पे we एक are छोटी सी seeing- चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। इस विषय में हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि क्या है कि 2013 में 2012, 13, 14 जब तक चुनाव नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि जो कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जरा फेयर था, आपके लिए जरा अनफेयर था, जरा उनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ था, बीजेपी की तरफ। अभी भी उनका झुकाव बिल्कुल बीजेपी की तरफ ही है, आपकी तरफ नहीं है। तो उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे, बिकॉज द मीडिया स्टिल अगेंस्ट यू। अगर आप देखें, इफ यू लुक एट द कवरेज व्हिच इज गोइंग ऑन, द रिपोर्टाज which is going on, राजीव जी, मैं sir, नेशन नाउ को even पूरी बात सुन लीजिए सर, even the Karnataka election results when they were coming in, even at that time one could see the bias, especially in the cowbell channels, especially in the Hindi channels. It had to be seen to be believed. सोनी साहब, यस सर। तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? सर देखिए, आई कॉम्प्लीमेंट राजीव जी, यू एंड प्रदीप जी और नेशन नाउ को कि आप लोग खुद मुझे ये ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मीडिया बायस के बारे में। अगर ये मैं बोलता तो आप बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर देखिए, 2012, 13 और 14 में एक आंदोलन चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी, और उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस तो सारे खारिज हो गए। जी, और CAG of the country, सर CAG of the country had to apologize। और उस अपोलॉजी को संजय निरुपम जी ने जो केस किया था उसके सामने, उस अपोलॉजी को वो लोग ने सबके सामने नहीं लाए। तो मीडिया बायस तो है, लेकिन सर जो घटनाएं घट रही है और हम लोग हमारे अंदर से जो कुछ भी अभी तक हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और हम लोग जहां तक पहुंच पा रहे हैं, वो लोगों तक मैसेज जा रहा है। और लोग आज परेशान हो चुके हैं और त्रस्त है लोग, और जिस हिसाब से ये देश में सारी डेमोक्रेटिकली सेटअप इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, वो देखते 2024 में अगर यही मीडिया इतना ही बायस रहा तो भी जैसे कर्नाटक में इतना बायस रहने के बावजूद भी जो रिजल्ट दिया है,
वैसा हमारे देश की जनता But the इतनी local बेवकूफ- channels were with you, sir. In Huh? Karnataka, the local Karnataka channels were with you. Let's be very clear. They were very fair. जो local Sir. Karnataka channels जो हैं कर्नाटक में, they were very fair. They were very Sir. very fair. Their reporting was very objective. In fact, Yes, yes, yes. everywhere you see the local channels, the smaller channels are being very very fair. अब तो जो एक चैनल बेचारा जो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, बैलेंस होता था, वो भी बिक गया. अब तो एनडीटीवी भी बिक गया. मतलब अब आप क्या करेंगे सर? मतलब आपसे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ. अब आप Sir, अपना sir. चैनल शुरू कर दीजिए सर. अब अपना Sir. चैनल आप शुरू कर दीजिए. आपके Sir. लोगों ने जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं कांग्रेस के मतलब इतने सालों के राज के दौरान, उनको बोलिए कि 1000 करोड़ रुपए लगाएं, अपना चैनल लॉन्च करें सर. बिल्कुल बिल्कुल सर. चैनल बनाना, चैनल चलाना इज अ वेरी वेरी कॉस्टली प्रपोजिशन. और जैसे जैसे सर देखिए, बट आई अप्रिशिएट दोस जर्नलिस्ट. सर मैंने जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को मैंने उनके एडिटोरियल्स पढ़े हैं सर, कि दे यूज्ड टू सो अपराइटली ऑनेस्टली दे यूज्ड टू राइट द फैक्ट्स. जैसे सर देखिए, बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले जी ने 1980 में कहा था कि एमटीएचएल लिंक होनी चाहिए. उस समय पे उनको जिस प्रकार से हराया गया वो हम लोग ने देखना चाहिए. उसी प्रकार से जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट जो एडिटोरियल्स लिखते हैं और जो लोगों में प्रभाव डालते हैं, वो वैसा फिर से जरूर आएगा. और अगर Soni Saab, you know, you got a problem on Savarkar Jayanti. The new parliament building is going to be inaugurated. 19 opposition parties have said we are boycotting it. तो सर क्या प्रॉब्लम क्या है? द्रौपदी मुर्मू असली प्रॉब्लम है या सावरकर जी प्रॉब्लम है? Because this particular issue is going to have its ramifications in Maharashtra and Mumbai. कि सावरकर जयंती के माध्यम से जो हो रहा था उद्घाटन, आप लोग विरोध कर रहे हो. सोनी साहब, प्रदीप जी, they are unnecessarily raking up the issue. It may be a sheer coincidence. They are unnecessarily raking up the issue on सावरकर जी. Okay, सर. लेकिन हम लोग जो अपोज कर रहे हैं, संसद भवन का जो इनॉग्रेशन है, उसका जो अपोजिशन हम लोग कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, वो महामहिम राष्ट्रपति हमारे ट्राइबल है और वो लेडी है. अगर आप इतना उनके बारे में पब्लिसिटी करते हो और उसका मार्केटिंग करते हो, तो फिर राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द बोथ द हाउसेस. और उस दोनों हाउसेस के एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतीक है, न्याय का मंदिर है, हमारे देश का संविधान का मंदिर है, उसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति का ही होना चाहिए. और आप राष्ट्रपति को भी इनवाइट नहीं करते हो, उपराष्ट्रपति को भी इनवाइट नहीं करते हो. और आप इसका जब भूमि पूजन किया था तभी भी उस समय के राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हो. तो उसका मतलब क्या है? आई, मी एंड माई सेल्फ. सर आप उसमें बिलीव करते हो? सर एक छोटी सी बात सर. भरत सोनी साहब, माफ कीजिएगा. 1975 में 1975 में पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन हुआ. पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग was inaugurated by Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. 1987 Parliament Library was inaugurated by Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi. तो अगर वो पार्लियामेंट एनेक्सी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट लाइब्रेरी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट क्यों नहीं कर सकते सर? प्लीज सर देखिए, पार्लियामेंट एनेक्सी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के फ्लैट्स को इनॉग्रेशन करना, ये ठीक है सर. ये प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करे तो कोई बात नहीं है. लेकिन सर ये न्याय का मंदिर है और ये इतना बड़ा है. 888 एमपीस का ये बनाया हुआ है सर जी. और हम लोग ने इतना बाकी एमपीस कहां जाएंगे सर? सोच हाँ? लीजिए क्या होने वाला है, देख लीजिए. बिल्कुल सर. तो हम लोग उस न्याय के मंदिर का उद्घाटन, हमारे देश का आज सर्वे सर्वा प्रमुख कौन है, मुख्य कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश का सर्वोपरि कौन है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति है जी, दुरुस्त. और हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों से न होके अगर आप जो खुद के हाथों से खुद का, वो तो वैसे हुआ सर, मोटेरा स्टेडियम को खुद स्टेडियम का नाम देके खुद ही इनॉग्रेट करना. लेकिन स्टेडियम बहुत अच्छा है सर, बहुत खूबसूरत है सर. स्टेडियम के बारे में दो राय नहीं है सर. हम लोग आप कुछ भी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड,
फैंटास्टिक, यस सर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आईपीएल का फाइनल होने वाला है सर वहां पे। बिल्कुल तो सर। सर चलते चलते भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 कारगर होगी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने में या कांग्रेस की वापसी में? सर ये तो, सर हम लोग एक ओपन माइंड लेके खुले दिल से हम लोग जनता को मिलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हम लोग कर रहे हैं कि लोगों के जाके उनके प्रश्न सुने, ये हमारा रहता है। और उसके तहत अगर हमको उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है और देश की जनता अगर हमको चुन के लाती है, तो सर हम लोग जो जनता को वादे किए हैं वो वादे पूरे करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कटिबद्ध है और कांग्रेस पार्टी तैयार है। जैसे कि आपने कहा था कि हिजाब के ऊपर जो बैन है वो एकदम आप खत्म कर देंगे। स्कूल्स के क्लासरूम में जो हिजाब के ऊपर बैन है, सीतारमैया साहब की आज स्टेटमेंट आ गई है कि ही इज गोइंग टू लिफ्ट दैट हिजाब बैन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम वोट है आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान वापस कांग्रेस को वोट करें। सर हम लोग ये मुसलमान वोट्स को टारगेट करने के हिसाब से हिजाब बैन या हिजाब हटा रहे, ऐसा नहीं कर रहे सर। हम लोग सर पहनने की आजादी होनी चाहिए सर। आप उसके आप क्या ड्रेस पहने, आप क्या खाएं, आप क्या ये किससे बात करें, इसकी आजादी होनी चाहिए। कभी इस पर बात करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आखिरकार शाह बानो के केस के बाद आप राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन्स बिल भी वैसे ही लेकर के आए थे। आप बिल्कुल मुस्लिम वोट को टारगेट नहीं कर रहे थे, मान के चलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट we shall talk about that at some other point of time. फिलहाल भरत सोनी साहब, thank you very much for joining us. It's a great pleasure as always talking to you, and congratulations. Mr. Rahul Gandhi seems to have woken up and he has in turn woken up the Congress. आप ऐसे ही जागरूक रहें, लोगों के साथ टच में रहें और लोगों की समस्याओं का आप समाधान निकालें। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम। Thank you so much, sir. I hope the Congress really keeps